وہ لمحہ، وہ ساتھ قریب آئی. آئیے میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا ابرار حسین صاحب وارثی. تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! علماء اہل سنت! معزز، محترم، محتشم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین كنت نبيا وآدم بين الماء روح والطين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: وقوله الحق قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. من احب الحسن والحسین فقط احبنی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رواہ الترمذی. من کنت مولاہ فہذا علی المولا، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رواہ المسلم. وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والعاملین والحمد للہ رب العالمین. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سبحان اللہ سبحان. قابل قدر دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، جتنا ممکن ہو سکے اتنا بلند ترین دل جمعی کے ساتھ نبی والے نبی اور اولاد نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مشفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑا سا بلند ترین درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے دوسری حاضری ہے فروخ آباد کے سرزمین پر. تقریباً 8 سال پہلے ایک مرتبہ اور آیا تھا. کسی علاقے میں آیا تھا، علاقے کا نام معلوم نہیں ہے. جیسا کہ میرے علم میں ہے اور مجھے بتایا گیا، تھوڑا سا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ آگے آ جائیں
وہ ایک شعر سناؤں میں آپ کو، آپ لوگوں کو، کہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لوگے، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ واہ کیا کہیں، تو تھوڑا سا آگے آ جائیں، ایک ترتیب ہو جائے، چونکہ یہ خانقاہ ہے، یہ خانقاہ مجیبی خانقاہ ہے، تو یہاں جو صدقہ ملنا ہے وہ ابو صالح کی بیٹے کا صدقہ ملنا ہے۔ بے شک بے شک، بولو یار، جن کی اماں نے علی کا نام لے کر دودھ پلایا ہے وہ تو سبحان اللہ بولی دے، باقی سبحان اللہ، واہ اب میں اتنا حسین چہرہ ایسے گھوم کے دیکھوں گا، ادھر آ جائیں، اکرم بھائی آپ بھی ادھر آئیے، سامنے آئیے۔ اکرم جب میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، کیا کہنے کیا کہنے، اب جو بولے گا میں مشکور ہو جاؤں گا۔ جب میدان میں آ گئے ہو پھر کھل کے بات ہو، کیا کہیں، کھل کے بات ہو، توجہ ہے کیا؟ اب جن کی اماں نے علی کا نام لے کر دودھ کبھی بھی پلایا ہوگا وہ بولیں گے بقیہ کی مرضی کیا؟ جب میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ کیا کہنے، یا علی، یا علی، میں بھی حاضر ہوں اور وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن بات ان کی کرنی ہے جو وقت سے پہلے کے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، واہ سر بندے خاموش رہ گئے، میں سمجھا نہیں پایا۔ بات ان کی کرنی ہے جو وقت سے پہلے کے ہیں، یعنی وقت بنا بعد میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، وقت بنا بعد میں، یہ بنے پہلے۔ بے شک حق ہے۔ جب سمجھ، اچھا ایک بات بتا دوں میں، صرف کھجور کھانا ہی سنت نہیں، مسکرانا بھی سنت ہے، اور چہرہ ان کا اترے جن کا والے مر گئے ہو، بے شک کیا کہنے، چہرہ ان کا اترے جن کے والے مر گئے کیا ہوں، کہنے؟ ہمارے والے جہاں ہیں زندہ ہیں۔ بے شک کیا کہنے ہیں یار، اللہ جانے کیا ہو گیا آپ کو، ہمارے والے جہاں ہیں زندہ ہے، میرا نبی مدینے میں زندہ، میرا علی نجم میں زندہ، میری فاطمہ جنت البقیع میں زندہ، میرا حسن جنت البقیع میں زندہ، میرا حسین کربلا میں زندہ، میرا دوست بغداد میں زندہ، میرا وارث دیوا میں زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، تو بھائی توجہ ہے کیا؟ تو چہرہ ان کا اترے جن کے والے مر گئے ہوں، واہ واہ بولنا چاہیے تھا آپ کو، بولنا چاہیے تھا آپ کو۔ ہاں، ابو طالب اپنے بیٹے کا صدقہ عطا فرمائیں گے، مولا علی اپنے بچوں کا صدقہ عطا فرمائیں گے، ہاں، فاطمہ زہرا اپنے لالوں کا صدقہ عطا فرمائیں گی، اور جن کو یہ دے دیں گے نا وہ زمانے کے آگے یہ نہیں کرتا ہے۔ بے شک، جن کے والے مر گئے ہوں ان کا چہرہ اترے، بات ان کی کرنی ہے جو وقت سے پہلے کے ہیں۔ انتظار کر رہا ہوں کہ آپ سبحان اللہ بولیں تو اگلی بات کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے حصے کا بات ان کی کرنی ہے جو وقت سے پہلے گئے۔ حدیث شریف ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنت نبی آدم بین الماء روح والجسد، او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زبان ختم نبوت سے ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں اس وقت بھی نبی تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا، صرف تھا نہیں بلکہ نبوت کے ساتھ تھا، سبحان اللہ۔ صرف تھا نہیں بلکہ نبوت کے ساتھ تھا۔ کب؟ جب آدم جسم اور روح کے مرحلے کو طے کر رہے تھے، یعنی آدم نہ تھے میں تھا، سبحان اللہ۔ زمین نہ تھی میں تھا، سورج نہ تھا میں تھا، چاند نہ تھا میں تھا۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول خلق اللہ ما نوری، سبحان اللہ۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے اول خلق اللہ ما نوری، میری ماں بہنوں سیدہ زینب کا واسطہ بولنا، کیوں؟ ہماری اور آپ کی ملکہ سیدہ زینب درباری یزید میں علی کی طرح بولتی نہیں ہے۔ بے شک بے شک، حق ہے حق ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول خلق اللہ ما نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا،
میں کون سی بات کرنے لگا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بات ان کی کرنی ہے جو وقت سے پہلے کے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اول خلق اللہ ما نوری. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے سبحان اللہ. سب سے پہلے یعنی کچھ نہیں تھا. سب سے پہلے ظہر بنا سورج سے, کیا کہیں عصر بنا سورج سے, مغرب بنا سورج سے, عشاء بنا سورج سے, فجر بنا سورج سے. یعنی ظہر نہ تھا میرا نور تھا, سبحان اللہ. عصر نہ تھا میرا نور تھا, سبحان اللہ. مغرب نہ تھا میرا نور تھا, عشاء نہ تھا میرا نور تھا. ارے سورج ہی نہ تھا میرا نور تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم پکڑ اس سب میں سب آتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں جو نہیں مانتے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. ممبر پہ سب واہ. کا نام لینا ضروری نہیں. بے شک. ناپاک لوگوں کا نام لے کر زبان کا ذائقہ کیوں خراب کریے گا؟ پاک لوگوں کی محفل ہے, بس پاک لوگوں کا نام لیتے چل دیے. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اول خلق اللہ ما نوری. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا. سب سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام نہ تھے. جب آدم علیہ السلام ہی نہ سے تو آدمی کہاں سے ہوں گے؟ واہ. کیا کہنے ہیں بھائی, سبحان اللہ بولیے نا. میلاد شریف کی محفل ہے, میلاد تو پڑھوں گا نا میں. کیا اول خلق اللہ ما نوری میلاد کا حصہ ہے. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. نہ آدم علیہ السلام نہ آدمی. سبحان ارے اللہ. آدمی کی اوقات کیا, جب آدم علیہ السلام ہی نہ تھے تو آدمی کیا خاک ہوں گے؟ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اور ساری چیزیں جو بنائی گئی ہیں وہ میرے نور سے بنائی گئی ہیں. بے شک بے شک. کل خلائق من نوری. اسی نور کو یاد رکھیے گا. اچھا شعبان بابو آپ نے جب پڑھا نا تو میں سبحان اللہ بول رہا تھا. آپ کیا پڑھ رہے تھے کہتے تو میں بھی بول سبحان رہا اللہ تھا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اب اللہ جانے حق تلفی آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں. کیا توجہ, پیار جب ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے, پیار جب دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے. توجہ. کیا اول خلق اللہ ما نوری. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا. کل خلائق من نوری. سبحان اللہ. واہ واہ. ساری چیزیں جو بنی ہیں وہ میرے نور سے بنی ہیں. بے شک بے شک. وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ. اور حضور فرماتے ہیں اور وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ, اور میں اللہ کے نور سے بنا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ ختم واہ. نہیں ہوئی, خانقاہی بات اب شروع ہونی ہے. کیا وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ, اور میں اللہ کے نور سے بنا. یا رسول اللہ بس کا نہیں, انا و علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. انا و علی من نور واحد. میں اور علی ایک نور سے بنائے گئے ہیں. حق ہے حق ہے حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. میں اور علی ایک نور سے بنا. واہ واہ. یعنی جو نور سے میں بنا اسی نور سے علی بنے. جس نور سے میں بنا, جس نور سے میں بنا اسی نور سے علی بنے. میرا اور علی کا نور ایک. حضور فرماتے ہیں میرا اور علی کا نور ایک ہے. اب تھوڑا سا شاعروں کا چہرہ آپ دیکھ لیجیے, باقی اب میں سمجھ رہا ہوں. کیا آج پہلا دیر میں کتنا اجالا نور کا. کیا کہنے. آج پہلا دیر میں کتنا اجالا نور کا. دور سے دیکھا کہ یہ موسیٰ بھی جلوہ نور کا. نبی میں چہرہ دیکھیے گا, چہرہ دیکھیے. شاعروں کا چہرہ تو ضرور دیکھیے گا, باقی میں دیکھ رہا ہوں. کیا آج پہلا دیر میں کتنا اجالا نور کا. دور سے دیکھا کہ یہ موسیٰ بھی جلوہ نور کا. ہے. ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. بے شک بے شک. کیا سبحان کہنے اللہ. کیا کہنے. حق ہے. ابو طالب کے گھر کا. واہ 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 واہ. واہ.
آج پھیلا غیب میں کتنا اجالا نور کا، دور سے دیکھا کہ یہ موسیٰ بھی جلوہ نور کا، ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا، ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ، ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ، ہے ابو طالب کے گھر کا، ہے ابو، وہ چاہے بغداد میں ہو یا کربلا میں ہو، ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا، وہ چاہے اجمیر میں ہو یا گلیئر میں ہو، ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا، وہ چاہے دلی میں ہو یا دیوا میں ہو، ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا علی۔ منظر ہے میرے وارث کے روزے کا، کہیں بیدم کہیں فیضو کہیں سرکار لیتے ہیں، اور میرے وارث کے روزے کو ذرا تم غور سے دیکھو، حسین پاک ہیں کہ ہے میرے کرنال، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سبحان اللہ، حیدر یا علی۔ سبحان اللہ، ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ بچہ۔ بچہ، ندیم بھائی دیکھیے نا، فیس بک پہ ایک زمانے سے دیکھتا رہا، آج تو دیکھنے کا موقع ملا ہے، کیا ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا، اج محمد تا محمد سارا کنبہ نور کا۔ ہائے ہائے کیا ہائے، یہاں بندے بولنے والے بندے بولنا چاہیے تھا تمہیں، ہاں؟ تمہیں کوئی نہ سنے، تمہیں کوئی نہ دیکھے، لیکن حسین کی اماں تمہیں دیکھ رہی ہے، سبحان اللہ، علی کے بابا تمہیں حسین کی اماں دیکھ رہی ہیں، تمہیں حسین کے بابا دیکھ رہے ہیں، تمہیں حسین کے بھائی دیکھ رہے ہیں، اور تمہیں حسین کا نواسا سرکار غوث اعظم دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، آج پہلا ظاہر میں کتنا اجالا نور کا، دور سے دیکھا کہ یہ موسیٰ بھی جلوہ نور کا، ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا، اج محمد تا محمد سارا کنبہ نور کا، واہ واہ واہ، اب سننے والی بات آ گئی، اج محمد تا محمد سارا کنبہ نور کا، مصطفیٰ یوں ہی نہیں سمجھی ابو طالب کے ہیں، اے اللہ جانے کون۔ کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ، آج پہلا غیر میں کتنا اجالا نور کا، دور سے دیکھا کہ یہ موسیٰ بھی جلوہ نور کا، ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا، اور جس کی رسائی جہاں تک ہو وہ وہاں تک پہنچے، میں تو بغداد تک پہنچ چکا ہوں، جس کی رسائی جہاں تک ہو، جس کی رسائی دیوا تک ہو وہ دیوا تک پہنچے، جس کی رسائی اجمیر تک ہو اور اجمیر تک پہنچے، میں بغداد تک پہنچ کر کہہ رہا ہوں، کیا ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا، آج محمد تا محمد سارا کنبہ نور کا، بولنا دوستو، کیا ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا، آج محمد تا محمد سارا کنبہ نور کا، مصطفیٰ یوں ہی نہیں سمجھی ابو طالب کے ہیں، مصطفیٰ یوں ہی نہیں سمجھی ابو طالب کے ہیں، ان کی بیٹی نور کی ہے، ان کا بیٹا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا، آج محمد تا محمد سارا کنبہ نور کا، اب ایک نور ہے سجدے میں، آہا، سبحان اللہ، ایک نور ہے سجدے میں، ایک نور سجدے میں، نماز پڑھا رہے ہیں، آہا، سبحان اللہ، نماز پڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا، ایک نور سجدے میں، صحابہ کرام پیچھے، وہ جو سراپا نور ہے وہ آگے امام بن کر صرف صحابیوں کا امام نہیں بلکہ رسولوں کا امام، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ صرف صحابیوں کا امام نہیں بلکہ رسولوں کا امام، صرف صحابیوں کا امام نہیں بلکہ نبیوں کا امام، صرف صحابیوں کا امام نہیں بلکہ پیغمبروں کا امام، یعنی سید المرسلین میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھا رہے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ،
नमाज पढ़ा करिए you need a 5 time that is very compulsory because Allah says in Holy Quran inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta सुभान अल्लाह बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त मुअय्यना के साथ फर्ज है नमाज मत छोड़िए नमाज कभी मत छोड़िए मस्जिदों को आबाद करिए मस्जिदों को वीरान मत करिए मस्जिदों को आबाद करिए वाह अपनी निगाहों में हुसैन को रखिए सुभान अल्लाह वाह 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 नमाज पढ़िए एक अच्छी बात और कर लो क्या नमाज पढ़िए लेकिन इस चक्कर में मत रहिए कि नमाज बख्शवा देगी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस चक्कर में मत रहना नमाज बख्शवा देगी मौलाना कहाँ से बोल रहे हैं वैसे तो मैं मुंह से बोलता हूँ लेकिन आप सुन कहाँ से रहे हैं नमाज जरूर पढ़िए लेकिन इस चक्कर में मत रहिए नमाज बख्शवा देगी बख्शवाने का ठेका कोई और लिया है क्या कहने सुभान अल्लाह वाह वाह अक्सर वीडियो वाह। चल रहे हैं मेरे वाह अल्लाह जाने कौन लाइव चला रहा है कौन वीडियो बनाएगा कल यूट्यूब पर भेजेगा बोलना कि अबरार हुसैन वारसी शहर मिर्जापुर से आकर फर्रुखाबाद में बोलकर ये कहे नमाज पढ़ो हूरों की चक्कर में नहीं क्या कहने वाह वाह नमाज पढ़ो जन्नत के चक्कर में नहीं बेशक सुभान अल्लाह नमाज पढ़ो इस चक्कर में नहीं कि ये मिलेगा क्योंकि नमाज हम पर फर्ज है बेशक बेशक इसीलिए नमाज नहीं बख्शवाएगी भाई दलील है जी दलील है दलील दीजिए चलिए ले चलते हैं आज से 1400 साल पहले 1390 साल पहले हम चलते हैं एक मुल्क है उस मुल्क का नाम है इराक क्या कहने वाह इराक में एक शहर है जिसका नाम है करबला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए फिर कह चुका हूँ कि हमारे वादे जिंदा हैं बेशक सुभान अल्लाह एक साहब कह रहे थे हजरत हुसैन हजरत हुसैन हजरत हुसैन मैंने कहा यार इमाम हुसैन कहे तो कहने लगे वो कहाँ के इमाम है हमने कहा भैया वो जो नमाज आप यहाँ पढ़ाते हैं वो कौन है कहने लगे पेश इमाम हमने कहा जिसको 5000 देता है उसको तो इमाम मान लेता है क्या कहने जिसको 5000 देता है उसको तो इमाम मान लेता है और तुम्हारी मस्जिदों को इमाम तुम चुनते हो मस्जिद का इमाम इंतखाब कौन करता है सदर चुने मुतवल्ली चुने खजांची चुने अराकीन मस्जिद चुने जिसको मोहल्ला चुने वो मस्जिद का इमाम होता है खड़े होकर भी बोलोगे तो दांत कम बात बड़ी कर रहा हूँ क्या जिसको मोहल्ला चुने नदीम भाई जिसको मोहल्ला चुने वकील साहब जिसको मोहल्ला चुने वो मस्जिद का इमाम होता है लेकिन जिसे रसूलुल्लाह चुन ले वो कायनात का इमाम है सुभान अल्लाह या अली या अली या अली या अली करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे और नाराए हैदरी सब मिलके लगाते रहिए कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाए हैदरी या अली देखो बीच में शेरना में वरना मैं भी कहूँगा हाँ मौला अली वली की विलायत को बांट कर मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया मुश्किल बहुत था फर्क हलाल और हराम में ये काम भी गदीर में आसान कर दिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आसान कर दिया तवज्जो दो। ये काम खैर है तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनकी पेशानियां चढ़े मुझे बताएगा जिनको तकलीफ हो मुझे बता नदीम भाई से कोई ना पूछे कल कि वो ऐसे बोल के गए मैं खड़ा हूं ना मुझसे पूछे ना बेशक कि अलैहिस्सलाम कैसे कहा मेरे जाने के बाद नहीं मुझसे पूछो अलैहिस्सलाम कैसे कहा ऐसे कहा वो अलैहिस्सलाम कैसे वो नबी है क्या किस किताब में लिखा है किसी नबियों
किस किताब में लिखा है? किसी में नहीं। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप क्यों कहते हैं? चलो नहीं कहते, फिर किसको? सिर्फ नबियों को कहते हैं। जिब्रील तो नबी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकलीफ है तुम्हें? जिब्रील तो नबी नहीं, तो अब जिब्रील को कहना शुरू करें हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या कहने हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मौलाना ये क्या कह रहे हैं आप? जिब्रील को अलैहिस्सलाम कहिए। मैं पूछूं क्यों कहूं? कहेंगे नूर से बने हैं। क्या कहने नूर से बने हैं, नूर से बने हैं, नूर से बने हैं। अरे हमने तो 5 नूर वाले को एक चादर के अंदर देखा है। वाह वाह वाह, क्या कहने 5 नूर वालों को सुभान अल्लाह, सुभान। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी नहीं, लेकिन अलैहिस्सलाम कहते जी मासूम है, नूर से बने हैं। हदीस भूल गए? पैगंबर आज़म नूर मुजस्सम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों कहना चाहिए जिब्रील को अलैहिस्सलाम? चलो मैं जिब्रील का एक वाकया तुम्हें सुनाता हूँ थोड़ी सी देर मुकदमा के लिए, और इसी पर बात करनी है बहुत तवज्जो से। क्या इमाम हुसैन अपने घर में हैं, झूले में झूल रहे हैं। ये का एक झूला रुका, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा आराम फरमा रही थी। अल्लाह ताला ने कहा जिब्रील, कहा जी, कहा चले जाओ। सुभान क्या अल्लाह, कहने सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। वाह 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 वाह। कहा जिब्रील, कहा जी, कहा चले जाओ। कहा शहर मदीना। हाँ, सुभान अल्लाह। हमारी भी तो आए हैं ना, या इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जिब्रील जी चले जाओ। कहा शहर मदीना, किसके घर? यानी किसके घर? काली के घर, फातिमा ज़हरा के घर। सुभान। हुसैन झूला झूल रहा है, इससे पहले कि झूला रुके जाओ, झूला झूलो। सुभान अल्लाह, सुभान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गए आए जिब्रील अलैहिस्सलाम, और अल्लाह का चूंकि हुक्म हो गया ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, झूला सुभान अल्लाह। नकीर साहब यही तो आज तक नहीं समझ पाया मैं, जब झूला झुलाने वाला अलैहिस्सलाम हो सकता है, क्या कहने सुभान अल्लाह, जब झूला झुलाने वाला अलैहिस्सलाम, बोलना, जब झूला झुलाने वाला अलैहिस्सलाम हो सकता है, तो झूले में झूलने वाला अलैहिस्सलाम क्यों नहीं हो सकता है? सुभान अल्लाह। क्या कहने वाह वाह। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुंचे। वैसे और भी वाकयात है, अभी वो मैं समझा रहा था, नमाजें नहीं बख्शवाएंगी। सुभान अल्लाह। पीछे वाले सुस्त हो गए, बोलो भैया, बोला करो। अरे यार जो मनहूसों को मानते हैं वो अपने मनहूसों के लिए बोलते हैं। हमारा इमाम तो वो है जिसने सर उठा के जीना सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मनहूसों के मानने वाले बोल रहे हैं चौ 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 चौ। हमारे इमाम में कोई दाग हो तो बताओ, बेदाग है मेरा इमाम। बेशक हक है। बेदाग है मेरा इमाम, बेदाग है मेरा पेशवा, बेदाग है मेरा रहबर, बेदाग है मेरा पीर, पीले लासानी, कुतुब रब्बानी, शाइख अब्दुल कादिर जीलानी। हक है, हक है। सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन अलैहिस्सलाम के औलादों में से बेमिसाल। जब बच्चा बेमिसाल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बच्चा बेमिसाल है तो इनके बाबा कितने बेमिसाल होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुकदमे में आ जाऊं मैं क्या? इमाम हुसैन करबला में 72 शहीद हुए जी। सामने कितने आए? हमारे किताबों में 22,000 है। लड़ने आए थे जी, नमाजी इधर भी नमाजी उधर भी जी, जुहर इधर भी जुहर उधर भी जी।
असर इधर भी असर उधर भी जी, मगरिब इधर भी मगरिब उधर भी जी, वाह। ऐशा इधर भी ऐशा उधर भी जी, फजर इधर भी फजर उधर भी जी। तब बताइए मुझे शिम्र कहाँ जाएगा? फैसला आपने करना है ना। शिम्र कहाँ जाएगा? कहने लगे जहन्नम में। मैं कहूँगा नमाजी तो था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। शिम्र कहाँ जाएगा? कहने लगे जहन्नम में। हुरमुला जिसने अली असगर के हलकूम पे तीर चलाया था कहाँ जाएगा? कहने लगे जहन्नम में। जिलजौशन कहाँ जाएगा? कहने लगे जहन्नम में। मैं कहूँ नमाजी तो थे। ज़ुहर इनके पास, असर इनके पास, मगरिब इनके पास, इशा इनके पास, हाफिज कुरान ये, कारी कुरान ये, हाजी ये, मुफ्ती ये, और फिर भी आप कह रहे हैं कि जहन्नम में जाएंगे। तो कहने लगे जी वो सब तो ठीक है, नमाजी तो थे, लेकिन वो आशिक नहीं थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जोर से कहूँ तब बोलोगे आप सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। वो नमाजी तो थे लेकिन आशिक ना थे, वरना उसी 22,000 में से एक आशिक निकला जिनका नाम हुर है। हुर 72 के साथ जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क होना चाहिए, हाँ। इश्क होना चाहिए। अगर इश्क नहीं, सारे अमाल मुंह पर मार दिए जाएंगे। मुसनद फिरदौस का एक हदीस नोट करूं। एक बंदा, हुजूर फरमाते हैं, एक बंदा खाने काबा में हो, हरम शरीफ में, खाने काबा में हो, इधर खाने काबा में हो, मकामे इब्राहिमी पर खड़ा होकर नमाज अदा करता रहे, रोजे की हालत में हो और कहीं इसी हालत में उसको मौत आ जाए और उसके दिल में जर्रा बराबर भी मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ हो, सीधा जहन्नम में जाएगा। या अल्लाह ताला उसकी नमाज़ें, या रसूलुल्लाह उसके रोज़े, या रसूलुल्लाह उसके हज, या रसूलुल्लाह उसके अच्छे अमाल। कहा अच्छे अमाल तब काम आएंगे जब मैं और मेरी अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में होगी। मुंह पे मार दिए जाएंगे। बेशक। अहलुल बैत से अगर मोहब्बत नहीं, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज में, हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में, दीन इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत का नाम ईमान के बाद नमाज, नमाज जी। फिर हमारी और आपकी नमाज नहीं, उस नमाज की बात हो रही है जिनका नकल करके सब पढ़ते हैं। बेशक। वो नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबाए किराम पीछे हैं। वकील साहब मैं आपके घर गया, आपके घर का दरवाजा कहाँ खुलता है? मैंने देखा है कि वो कॉलोनी में घर है और गली में खुलता है। नदीम भाई के घर से अभी मैं चला रहा हूँ, इनके घर का भी दरवाजा गली में ही खुलता है। मैं अभी होटल में कह रहा था, मैं वहां से गली से बाहर निकला एकदम रोड पर, यानी जिसके घर का दरवाजा खुलता है या तो गली में या तो रोड पर। हाँ हूँ करते नहीं जी। हाँ हूँ बोलिए, ऐसा ही है ना। जिसके भी घर का दरवाजा खुलता है या तो गली में या रोड पर, मुफ्ती के घर का दरवाजा गली में या रोड पर, मौलाना के घर का दरवाजा गली में या रोड पर, कारी के घर का दरवाजा गली में या रोड पर, हाफिज के घर का दरवाजा गली में या रोड पर, नकीब के घर का दरवाजा गली में या रोड पर, फकीर के घर का दरवाजा गली में या रोड पर, शायर के घर का दरवाजा गली में या रोड पर। लेकिन अल्लाह के इज्जत की कसम, हुसैन के घर का दरवाजा न तो गली में खुलता था, न तो रोड पर खुलता था। सुभान अल्लाह। हुसैन आज़म, शहीद आज़म, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा न तो गली में खुलता था, न तो रोड पे खुलता था। फिर कहाँ खुलता था? हमारे और आपके घर का दरवाजा गली और रोड में खुलता है। क्यों खुलता है? हम भी चाहें तो हमारे बगल में मस्जिद है, वहाँ दरवाजा खुलवा दे और इसी में निकलेंगे। फौरन शरीयत ने कहा मना, बंद करो इसको, शरई हुक्म बंद करो।
जी क्यों? इमाम हुसैन भी तो निकलते थे मस्जिद में। जवाब मिलेगा फर्क है, तुम दीनदार हो वो दीन है। फर्क है, तुम दीनदार हो वो दीन है। क्या मतलब? अरे भाई अजमेर के ख्वाजा ने कहा ना, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नादार, दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। लब्बैक या हुसैन, किया हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। की जो आस है, अब्बास है, अब्बास है, की जो आस है, अब्बास है, अब्बास है, के जो पास है, अब्बास है, अब्बास है, की जो आस है, अब्बास है, अब्बास है, की जो आस है, अब्बास है, अब्बास है। किया हुसैन, लब्बैक या हुसैन। या देखो भाई आप नापाक हो जाते हो, हाँ, और तुम्हें पानी पाक करे, यानी तुम वो हो जिसे पानी पाक करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? तुम वो हो जिसे पानी पाक करे, गुस्ल करो तब पाक हो। तुम वो हो जिसे पानी पाक करे, जिसे पानी पाक करे वो तुम हो, जिसे अल्लाह पाक करके भेजे वो हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हुसैन है। इमाम हुसैन के घर का दरवाजा वैसे भी और भी दरवाजा खुलता था। मस्जिद नबवी में अल्लाह का हुक्म आया कि सबके दरवाजे बंद करवा दीजिए, एक ही दरवाजा खुला रहने दीजिए, फातिमा के घर का दरवाजा। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से, अपने कमरे से, अपने रूम से, अपने घर से बाहर निकले, देखा नाना नमाज पढ़ा रहे हैं। अबू तालिब के घर का बच्चा नूर का ये बड़ा सखी घराना है, सखी घराना है, इसको याद रखना। ये किसी का एहसान रखते नहीं है, एहसान रखते नहीं है। हाँ, अगर सामने आकर नहीं देंगे ना तो अपने खादिमों के ख्वाब में आकर कह देंगे, अगर सामने आकर नहीं देंगे तो खादिमों के ख्वाब में आकर दे देंगे, मेरा बहुत चाहने वाला आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर नदीम भाई पहुंच गए हो और जो लोग अकीदतमंद है जो पहुंच गए हो उन पर लाजिम है कि वो बोले, अगर वो सामने आकर नहीं देंगे तो ख्वाब में आकर कह देंगे मेरा चाहने वाला आ रहा है, मेरा आशिक आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है। बेशक, बेशक। दे देना तबर्रुक दे देना, तबर्रुक दे देना। सरकार क्यों दे दें? का फर्रुखाबाद ले जाएगा ना। सुभान अल्लाह, सुभान तबर्रुक दे देना, क्यों? कहा कि फर्रुखाबाद ले जाएगा। अरे लोग हमारे दल तक अगर नहीं आ पाएंगे तो हमारे तबर्रुक से फैज़याब होते रहेंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे दल तक अगर नहीं आ पाएंगे तो हमारे तबर्रुक से फैज़याब होते रहेंगे। ये वो घराना है, ये सखी इब्ने सखी का घराना, ये वली इब्ने वली का घराना, ये करीम इब्ने करीम का घराना, ये पूरा घराना ही लजपालों का है। ये पूरा घराना ही लजपालों का है। खुदा जाने कहां से जलवाए जाना कहां तक है, खुदा जाने कहां से जलवाए जाना कहां तक है। वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है, सुभान अल्लाह। वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से बाहर निकले, देखे नाना नमाज पढ़ा रहे, दिल आ गया और हुजूर है सजदे में, दिल आ गया इमाम हुसैन अली मकाम का, दिल आ गया क्या आज सवारी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने आशिक बैठे हो मैयत की पटरा की तरह चेहरा ना उतारे, मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। दिल आ गया हुसैन, इमाम हुसैन का।
अपने नाना के करीब पहुंचे। फातिमा उम्मुल खैर सरकार गौसुल आजम की अम्मी, इमाम हुसैन की बेटी लगेंगी। कौन है गौसे आजम मालूम है आपको? जिनका ददियाल हसनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है गौसुल आजम मालूम है? जिनका ददियाल हसनी है और जिनका ननियाल हुसैनी है। उन्हें अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। ये है सरकार गौसुल आजम जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वालल्लाहु मकामहु, वो जाति बाबरकत। इमाम हुसैन आए अपने नाना के करीब, अपने नाना के करीब आए और नाना सजदे में नदी में नमाज को सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला। आला कई बार पढ़ते हैं। वो वैसे उमूमन हम लोग 3 बार पढ़ते हैं और जो नमाज पढ़ाते हैं इमाम साहब वो 5 बार पढ़ते हैं। मैंने पूछा इमाम साहब आप 5 बार क्यों पढ़ते हैं? कहने लगे इसलिए हम 5 बार पढ़ते हैं ताकि मुक्तदी लोग कम से कम 3 बार पढ़ लें। सुभान अल्लाह, जी बिल्कुल। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बी। इमाम हुसैन आके पुश्त पर बैठ गए। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी मर्जी है तुम न बोलो, लेकिन रसूल तो बोलते रहे। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान। अब तुम्हारी मर्जी है भाई, कसम खा के आए हो, मैं क्या कर सकता हूँ? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान अल्लाह के इज्जत की कसम हदीस पढ़ रहा हूँ मैं। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान। तुम्हारी मर्जी है ना बोलो, फातिमा के बेटों के नाम मैं क्या करूं? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ये हुजूर पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल आला, मैं तो वही नकल कर रहा हूं। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल, हुजूर पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मेरे दिल में ख्याल आया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काफी बार पढ़ के उठा ली सुभान रब्बियल आला। एक बार मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं कहूं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके बच्चों का इतना सा गुलाम हूं मैं। जी हाँ, मेरे पेशवा, मेरे रहबर, मेरे पीर का नाम वारिस अली है। मेरे पीर का नाम वारिस अली है। मेरा शजरा कादरी भी है। जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार दिन में उठा लेते, जवाब में कैसे उठाऊं? फिर पढ़ना शुरू किया सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान। मेरे बच्चे यहाँ पर फर्रुखाबाद के मेरे वेल एजुकेटेड भाई और बहनें और माएं और बेटियां और दोस्त और यार अहबाब बैठे हैं। I have one question right now in my mind. एक सवाल है मेरे ज़हन में, क्या सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? हुजूर ही ने फरमाया है कि बुखारी शरीफ की हदीस, हुजूर ने फरमाया है कि ताक मर्तबा पढ़ो। ताक का मतलब विषम। जी जी। 1 पढ़ो, 3 पढ़ो, 5 पढ़ो, 7 पढ़ो, 9 पढ़ो, 11 पढ़ो, 13 पढ़ो, 15 पढ़ो, 75 पढ़ो, लेकिन आप तो पढ़े जा रहे हैं क्या? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। किताबों में आया कि 72 मर्तबा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अब सवाल ये पैदा होता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्यों नहीं उठा रहे हैं सर सजदे से? जवाब एक मिलेगा, अगर सेकंड कोई जवाब हो तो आप मुझे दे देना। मैं जवाब दे रहा हूँ, उसके अलावा कोई जवाब हो तो तुम देना मुझे, और मैं एग्री हो जाऊंगा अगर जवाब तुम्हारा सही होगा। मैं जवाब देता हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्यों सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं? जवाब एक, देखता नहीं कैसे उठाऊं? मेरे पुश्त पे मेरा नवासा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना नहीं, वो आसानी से सुन लिया और मैंने आसानी से पढ़ भी दिया। क्या देखता नहीं कैसे उठाऊं? मेरे पुश्त पर मेरा बेटा हुसैन बैठा है। सुभान अल्लाह। अगर मैं उठाऊंगा तो वो गिर नहीं जाएगा। यार अल्लाह जाने क्या हो गया तुम्हें। अगर मैं उठाऊंगा तो वो गिर नहीं जाएगा। फिर एक सवाल,
नमाज पढ़ा रहा हूँ। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज में भी नमाज में भी बच्चे नमाज आसानी से समझा रहा हूँ मैं, समझ में आ जाए ना। हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे? कहा नमाज पढ़ा रहा हूँ। या रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा रहे हैं फिर भी हुसैन याद है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने कभी लिखा था, एक फतवा दिया था कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। जी नमाज में नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। फतवा आया था, लिखे थे कुछ जाहिल लोग हैं जी बहुत जारी लोग। कुल कुछ अबू जहल की औलादे हैं। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। हाँ, कुछ अबू जहल की औलादे ये कह रहे हैं कि नबी का नमाज में ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी, लेकिन हुजूर आईने सजदा में हैं और सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। हुजूर की नमाज में हुसैन याद है। हुजूर की नमाज में हुसैन याद है। मैं पूछूं, फतवा लूं, मैं फतवा लूं और फतवा इधर को दो किताब पढ़ कर इन लोगों से नहीं, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फतवा लूं। इमाम शाफई फतवा दे। सुनो, वो नमाज ही नहीं जिसमें मोहम्मद व आले मोहम्मद याद ना आ जाए। बेशक बेशक बेशक। जी जी कहाँ है इमाम हुसैन? बस पुष्ट आ गया मैं पुष्ट पर, पुष्ट नबूवत पर। नबी के पुष्ट पर वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, जी नबी के पुष्ट पर। बस मैं बात खत्म करने लगा। इस दर के सब रहिए, इस दर के वफादार रहिए। कुछ मिले ना मिले करबला वालों का सदका मिलेगा, कुछ मिले ना मिले सरकार गौसुल आजम का सदका मिलेगा, कुछ मिले ना मिले दिल में सुकून मिलेगा, कुछ मिले ना मिले दिल में चैन मिलेगा, यानी मोहब्बत हसनाएं मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। याद रखिए इस दर से। और ये मत सोचें कौन क्या कहता है, कहने वाले हर दौर में कहते रहे, कहते कहते मर गए। बेशक सुभान अल्लाह। कहने वाले हर दौर मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, जोशे खिताबत नहीं है। कहते वाले हर दौर में करते रहे, मर गए। पता नहीं, लेकिन इनसे जो मोहब्बत करते करते मरा, पता है चमक रहा है कि पता है? सुभान अल्लाह। मैं एक मिसाल दूं आपको। गरीब नवाज, बस थोड़ी देर और। गरीब नवाज कहाँ है? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है? इंडिया में, भारत में जी। 800 साल से साइड हो गए। आज भी अजमेर चले जाइए, एक मजाक। क्या 800 सालों में और कोई नहीं मरा होगा वहां? मरे होंगे, क्या कहने हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह। 800 साल हो गए अजमेर में, क्या और नहीं मरे होंगे? मरे होंगे, लेकिन क्या वजह है? एक ही मजार पर फूल भी है, कागर भी है, चादर भी, अगरबत्ती भी, मोमबत्ती भी, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, बौद्ध भी, पारसी भी, अपने भी, सब वहां पर मौजूद होते हैं। क्या बात है? 800 सालों से कोई और इंतकाल नहीं किया होगा, लेकिन फिर एक ही मजार पे क्या बात है, भीड़ लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। कहाँ समझते नहीं। जब वो दुनिया से गए ना, तो ये कहते कहते गए, शास्त हुसैन आए हैं के बिनाए ला इलाहा। आज तो हुसैन अगर चमकना चाहते हो तो हुसैन से मोहब्बत करना शुरू कर दो।
बेशक हक है हुजूर सजदे में है और तब तक सजदे में है जब तक इमाम हुसैन पोस्ट पर बैठे रहे। जी बेशक पोस्ट पर जब तक बैठे रहे। बल्कि रिवायत में आता है कि पीछे जो सहाबा किराम थे उनमें से एक सहाबी जब काफी देर हुआ तो एक सहाबी अपना सर सजदे से उठाकर देखने लगी, यार रोज तो इतना देर नहीं होता है सजदे में, आज बहुत देर लग रहा है, क्या बात है। सर सजदे से उठाए तो देखा क्या, हुजूर बदस्तूर सजदे में है, पुश्त पर हुसैन है। सुभान अल्लाह फिर सजदे में चले गए, सुभान अल्लाह फिर सजदे में चले गए। आपका मसला सुने, अगर इमाम से पहले आपने सर सजदे से उठा दिया नमाज में तो आपकी नमाज मकरूह। जी तो उन सहाबी ने ना मेरे आका से पहले सर सजदे से उठाया, उनकी नमाज मकरूह का जी नहीं। क्या क्यों? क्या तुम उठाओगे तो फलाने के अब्बा को देखोगे, वो सर उठाएंगे तो रसूलुल्लाह को देखेंगे या हुसैन को देखेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी उनकी नमाज हो गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ऐ आले मोहम्मद आपकी फजीलत में और हम क्या बयान करें, जब तक कोई मुसलमान नमाज में आप पर दुरूद ना पढ़े उसकी नमाज ही मुकम्मल नहीं है, उसकी नमाज ही मुकम्मल नहीं है। उन्हीं की बेटी, उन्हीं की नस्ल पाक में एक बेटी आई जिनका नाम फातिमा मुल्क है। जी जी इनके बड़े भाई का नाम इमाम हसन है। इमाम हसन के एक बेटे का नाम हसन मुसन्ना, जी जिनकी औलादों में एक औलाद है अबू साले मूसा जंगी दोस्त। जी दोनों बड़े पारसा, मुत्तकी, परहेजगार, इतना परहेजगार, सीरत जो मिली थी हसन से, तरीका जो मिला था हुसैन से, इतना परहेजगार। सेब खाने के बावजूद भूख में सेब खा लिया, कहा किसका खा लिया मालूम नहीं, माफी मांग लूं। जिनका खाया था उधर ही चल दिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल दिया माफी मांगने के लिए। इधर भाइयों का पूरा हिस्सा हड़प कर बैठे हैं लोग, हाय सुभान अल्लाह। एक सेब तक हजम नहीं कर पा रहे हैं। Listen and try to understand. एक सेब नहीं हजम कर पा रहे हैं, कहा किसका खाया, पूछा नहीं। कल बरोज़े महशर अगर अल्लाह ताला हिसाब लेने लगेगा, ऐ अबू साले पूछा था, हराम का था, हलाल का था, किसका था, पूछा था नहीं। गए बाग वाले के पास और माफी मांगी। उसने 1 साल नौकरी और खिदमत करवाई और खिदमत के बाद अपनी बेटी से निकाह किया, तब राजी हुआ माफी पर। उनके वालिद मोहतरम अब्दुल्ला सुमैया रज़ी अल्लाह ताला बाग के मालिक का नाम, कहा नहीं माफ तो कर दूंगा, मेरे बाग में खिदमत करो, खादिम बनकर रहो, माफ कर दूंगा। अपने जिंदगी का जायजा ले, भाइयों पर 2 फुट, बहनें आती गई, पेशानी चिढ़ गए। मत चिढ़ाओ, बहनें जब आती हैं तुम्हारे दरवाजे शादी के बाद, मत चढ़ाया करो पेशानी, मत चढ़ाया करो, चढ़ाया करो पेशानी। बहनें मुकद्दर से आती हैं, बहनें मुकद्दर से आती हैं। बहनें आए ना तो सीना चौड़ा करा करो, हमारा भी कोई है जो हमारे दरवाजे आता है। तवज्जो, का मेरी बेटी अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लूली है, अपाहिज है, का एग्री विद यू? जी राजी कर लूंगा। क्यों? वहां भुगतने से अच्छा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारा क्या हाल है, कहां देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा? इतनी बारसा माँ गूंगी क्यों, झूठ नहीं बोली, बहरी क्यों, कभी हराम का सुना नहीं, हराम का हाथ से किया नहीं, हराम की तरफ कभी गई नहीं। जब इतनी माँ पारसा हो, इतनी मुत्तकी हो, इतनी परहेजगार हो, बाप जब इतना परहेजगार हो, मुत्तकी हो, उनके दिल में खौफे खुदा हो, जब ऐसे जोड़े अल्लाह मिलाता है, एक जोड़ा पहले मिलाया था, एक जोड़ा पहले मिलाया था, दूल्हा अल्लाह के घर से था, दुल्हन रसूलुल्लाह के घर से थी। तवज्जो, दूल्हा अल्लाह के घर से था, दुल्हन रसूलुल्लाह के घर से थी। जब ऐसे दूल्हा और दुल्हन हो तो यकीनन जो बेटे पैदा होंगे उनका नाम हसन होगा और उनका नाम हुसैन होगा। ऐसे दूल्हा और दुल्हन हो तो यकीनन बेटे का नाम
अब्दुल कादिर जिलानी होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पूरे दुनिया में जो मुझको जहां से तस्लीम कर ले मैं उसका हूँ। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, पूरे दुनिया में जो मुझको जहां से मान ले मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ, बेशक। मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हसन का हूँ, सुभान अल्लाह। मैं हुसैन का हूँ, मैं उसका हूँ जो मुझसे जहां से मुझे तस्लीम कर ले। अगर मुझे कोई अपना पीर मानता है, फर्रुखाबाद हो, कानपुर हो, इंडिया या बहरीन या पेरिस या जॉर्डन या जर्मन या इराक या ईरान, पूरी दुनिया की बात करो क्या, मुझे जो जहां से अपना पीर तस्लीम कर लेगा, कयामत के दिन वो मेरे मुरीदों में उठाया जाएगा। कयामत के दिन वो मेरे मुरीदों में उठाया जाएगा। वो ज़ाते बाबरकत और उन्हीं की तबर्रुकात आपकी दयारे मोहब्बत में मौजूद है। इस डर से निस्बत रखिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। होशियार हो जाओ, जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनको कोई रंजो मलाल नहीं होता है। ये ऐसे लोग हैं, ये तकवा वाले, ये परहेजगार। लेकिन जब मवद्दत की बारी आई, जब मोहब्बत की बारी आई, तो अल्लाह रब्बे काबा ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैंने नमाजों का तरीका बताया जी, रोज़ों का तरीका बताया जी, हज का तरीका बताया जी, जीने का तरीका बताया जी, बहनों के सर पे चादर दुपट्टा है जी। इसका मुझे तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए। जो जी रहे हो बहनों की इज्जत, माओ की हुर्मत, जो जी रहे हो, जो नमाज का तरीका, रोजे का तरीका, हज का तरीका, ज़कात देने का तरीका जो बताया, इसका मुझे तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, सुभान अल्लाह। मेरे घर वालों से मोहब्बत करते रहना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु इज योर फैमिली? कौन है आपके अहले बैत? कौन है आपके घर वाले? अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मौलाई कायनात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है जिनकी मोहब्बत और मवद्दत हम पर वाजिब कर दी गई है? का अली व फातिमा व बनाहुमा, अली है, फातिमा है और उनके बच्चे हैं, अली हैं, फातिमा हैं और उनके बच्चे। जब हम बच्चों में शुमार करते हैं तो बच्चों में एक बच्चा हसन है, एक बच्चा हुसैन है, एक बच्चा हसन है, एक बच्चा हुसैन है। अब हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत, ये अजरे रिसालत। अहले बैत में हसन है, अहले बैत में हुसैन है, अहले बैत में हसन की औलाद, अहले बैत में हुसैन की औलाद, इनसे मोहब्बत करते रहो। यानी अल्लाह ताला कह ये रहा है, अजरे रिसालत में गौसुल आजम की मोहब्बत, गरीब नवाज की मोहब्बत। नमाज़ें पढ़ते रहो, तुम्हारे मुंह पर मार देंगे। रोजे रखते रहो, तुम्हारे मुंह पर मार देंगे। जब तक अहले बैत से मोहब्बत नहीं करोगे, हम तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं करेंगे। क्यों? ये जीएसटी है, सुभान अल्लाह, और तुम्हें देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दोगे सारा आमाल हम रद्द कर देंगे। बस यही दुआ है, ऐ परवरदिगार आलम, जब तक हमें जिंदा रख, अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रख। जब हमें मौत नसीब फरमा तो अहले बैत की मोहब्बत में मौत नसीब फरमा। ऐसी खानकाहों से जुड़े रहिए और बुजुर्गान दीन औलिया किराम से मोहब्बत और निस्बत अपनाते रहिए और साथ में नमाजों की पाबंदी करिए। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा तो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेदम यही तो 5 हैं, मसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन व हसन मुस्तफा। क्या कहने हजरत, वाह माशाअल्लाह।